Come, let's pray as we come to God's word. और आइए प्रार्थना करें जैसे हम परमेश्वर के वचन की ओर आए। Father, we just humbly stand at your amazing love and at your presence with us. We don't deserve these things, but you are a God who has made it possible through the cross that you can always be with us. Even when we've wronged you, when we've disappointed you, you've made a way where you will always love us. We just thank you for that. And as we come to your word this morning as well, we just pray you will minister the love of God, and you'll minister the mercy of God, and you'll minister the righteousness of God. We pray that for each one of us, Holy Spirit, to open our eyes and to be with us in Jesus' name. Amen. Thank you. A very thank you to a big thank you to all who've surprised the fathers today. You know, और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका कि उन्होंने हम लोग को अचंभा कर दिया सारे पिताओं को। fathers generally do not worry about these things, but it's very touching what you did. Thank you very, very much. और पिता जो है ऐसी कोई जो है अपेक्षा नहीं करते इन चीजों के बारे में, पर आपने ये जो किया ये पिताओं को छुआ। Okay, I want to this morning carry on with our vision. और आज की सुबह भी हम जो हमारे दर्शन को लेकर चल रहे हैं उसको लेकर आज चलेंगे। We've seen great things when we've been looking at plead your case. Even this morning to hear Rohan's testimony, it's amazing. और जिस तरीके से हमने शुरुआत की है प्रार्थना से, अपनी अपनी जो भी आपकी जो प्रार्थना है परमेश्वर के पास लेकर रहेगी, और हमने आज भाई रोहन की गवाही को सुना। And we must, as God's people, keep pressing on, never giving up and pleading our case. और परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें रुकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ते जाना है। But then secondly, we saw we are also moved into the place that as we plead our case, God is also requiring of us to be a people of obedience. और जिस तरीके से हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर हमसे भी किसी चीज की चाहत रखता है। And we will see we must be a people of justice and righteousness too. और इसी तरीके से हमें न्याय और धार्मिकता के व्यक्ति बनना है। And we've done some messages on being a people of obedience. और हमने कुछ जो है संदेशों को सुना है जहां पर हम आज्ञाकारी होने के लिए बुलाए गए हैं। Today I would like us to see it from the angle of eldership. और आज हम जो है चाहते हैं कि आप जो है इसे प्राचीनों के नजरिए से देखें। So we're going to look specifically at certain eldership scriptures. और जो है कुछ ऐसे प्राचीनों वाले जो है वचनों को आज हम देखने वाले हैं। And though there are requirements of obedience and righteousness of elders, कि जहां पर धार्मिकता और न्याय की जरूरत है अगुओं में और प्राचीनों में, we will also notice actually these are requirements for every Christian. और हम देखेंगे ये जो है जरूरतें जो है हर एक मसीह की भी है। So let's this morning look at eldership. और आइए हम प्राचीनों की ओर आज देखें। But also saying, God, shouldn't I be like that? और परमेश्वर से हम कहेंगे कि क्या प्रभु मुझे वैसा बनना है। We're looking at character. और आज हम चरित्र के ऊपर देखने वाले हैं। We look at what if an elder sins and we pick up the seriousness of obedience. और हम देखेंगे अगर एक प्राचीन पाप करता है और फिर हम देखते हैं गंभीरता आज्ञा पालन की। We look at what if an elder is accused. और हम देखते हैं कि अगर किसी अगुवे के ऊपर किसी प्राचीन के ऊपर दोष लगाया जाए। And from these scriptures I'd like us to draw lessons about the seriousness of walking with God. और हम देखेंगे इन वचनों से कि परमेश्वर के वचनों में चलने की गंभीरता, of walking with God in obedience and righteousness. कि परमेश्वर की राहों में आज्ञा पालन के साथ और धार्मिकता के साथ चलना। For ourselves too. हमारे खुद के लिए। Is that okay? क्या ये ठीक है? So just tell your neighbor, come, let's listen together about how we should walk in righteousness. और अपने बाजू वाले से कहिए कि आओ अच्छे से कान लगाकर सुने
कि कैसे हम धार्मिकता में चलें। Amen. Yeah. Okay, so I'm going to have the slides ready. You can put up the first slide. Yeah, I'm sorry, it's a bit small. Okay, I'm going to read it anyway. Okay, so though it's speaking about elders, I also want us to see this is how the church should walk. और जिस तरीके से आज आपको प्राचीनों के बारे में, धर्म वृद्धों के बारे में बताने वाले हैं, और इसी तरीके से वचनों के जरिए आपको बताएंगे कि कलीसिया कैसे होनी है। A church that should walk in the fear of God. कि ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर के भय में चले। Okay, so Titus chapter 1 verse 6 to 11. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer manages God's household, again it's saying here, he must be blameless. What does that mean? Not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what's good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. But there are many rebellious people full of meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group. They must be silenced because they are disrupting whole households by teachings they ought not to teach. तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 6वें वचन से, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके लड़के बाले विश्वासी हों, और जिन्होंने लुचपन और निरंकुशता को दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, न नीच कमाई का लोभी, न पहनोई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और विश्वास योग्य वचन पर धर्म प्रदेश के अनुसार स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादों के मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। विश्वास करके खतना करने वालों में से 11वां वचन, इनका मुंह बंद करना चाहिए, और यह लोग नीच की कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। Amen. All right, so when we look at this for the elder, we see God's focus for eldership is a person's character. और हम देखते हैं इन वचनों के जरिए कि परमेश्वर का ध्यान जब एक धर्मवृद्ध और एक प्राचीन के लिए होता है, वो उसके चरित्र के लिए होता है। So the office of the elder is not just about the ability to lead or to preach or to organize things. और हम देखते हैं कि एक प्राचीन का जो मुख्य कार्य होता है सिर्फ आगे अगुवाई करना, कलीसिया को बोना ही नहीं, It's about character. और वो है चरित्र के बारे में। Character is critical, और ये बहुत ही अहम है और संवेदनशील है। and the character gives the platform for the leader to function in his gifting. क्योंकि उस जो एक प्राचीन को एक तरीके का मुकाम मिलता है जिस पर वो खड़े रहकर अपने कार्य को कर सकता है, एक मंच मिलता है उसे। All right, and we see twice here, Paul writes, an elder must be blameless, without any blame. और वो ये बताता है कि एक प्राचीन जो है निर्दोष रहना चाहिए, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का दोष ना रहे।
That means not just in the eyes of God, but in the eyes of people, we should not be easily able to blame an elder. सिर्फ परमेश्वर की नजरों में नहीं, बल्कि इंसानों की नजरों में वो निष्कलंक निर्दोष रहना चाहिए। All right? And what should we not be able to blame him about? और हम किन बातों के ऊपर उसके ऊपर दोष नहीं लगा सकते। We see there in the scripture, not overbearing, और सिर्फ जो है खुद के बारे में रखने वाला वैसा नहीं, faithful to his wife, अपनी बीवी के साथ विश्वास योग्य रहने वाला, not quick-tempered, और जल्दी गुस्सा होने वाला नहीं, not given to drunkenness that all people know this elder is drinking all the time. न पियक्कड़ होना। हम ये सुनने में आता है कि जो प्राचीन है धर्मवृद्ध वो बहुत पीते हैं, पियक्कड़ हो गए हैं। Not violent, और न मारपीट करने वाले, not pursuing dishonest gain. और न नीच के कमाई के लोभी हो, Instead, he must be self-controlled. और उनके पास संयम रहे, There must be an uprightness to him, और हमेशा भलाई का चाहने वाला रहे। right? He must hold firmly to a trustworthy message and not run after every teaching on YouTube. और विश्वास योग्य वचनों पर अड़ा रहे, ना कि उन संदेशों के ऊपर जो यूट्यूब पर दिखाए जाते हैं। All right? And so firstly, it's saying this whole lot of characteristics of an elder. और हम देखते हैं ये सारी विशेषताएं हैं प्राचीन के बारे में। But I want you to understand, actually, it's about all of us. और Right? आपको बता दें ये हमारे बारे में है। Yes or no? आया ना? If it's talking of not given to drunkenness, is that only for the elder? सिर्फ ऐसे जो है पियक्कड़ बनना, पियक्कड़ न बनना, ये जो है सिर्फ प्राचीनों के बारे में है। Being faithful to his wife, is that only for the elder? अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य बने रहना क्या सिर्फ ये प्राचीन के लिए है? So actually we're seeing this is for all of us as Christians. और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हम सभी के लिए मसीह होने के नाते, But certainly for the elder. पर ये जो है खास तौर पे Amen. प्राचीन के बारे में है। And in verse 10 there it says, there are many rebellious people. और यहाँ पर जिस तरीके से 10वें वचन में कहा है, बहुत ही निर्कंश और बकवादी वाले लोग हैं। That means people who don't pay attention to these things. और कुछ लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। They get engaged in all meaningless talk. They'll talk a whole lot of other stuff that they've heard on YouTube. और वो जो है इन बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि कोई और बातों में लगे रहते हैं, उन्हीं बातों को लेकर बात करते रहते हैं और बकबक करते रहते हैं जो उन्होंने यूट्यूब पर देखा है। All right? And we have to be careful that the church doesn't become a place where people come in and say, you listen to this teaching, the church will go to the next level. और फिर हम आते हैं ऐसे लोगों के पास में जहां पर वो लोग आके कहते हैं कि तुम इसको सुन, इस कलीसिया के बारे में सुन, तुम्हारा कलीसिया और ऊपर चले जाएगा। See, Paul is focusing on what needs to be in the church. और पौलुस यहाँ पर हमारा गौर लेकर जा रहे हैं उन बातों के ऊपर जिन पर एक कलीसिया होनी चाहिए। And rebellious people don't want to focus on things. They want to focus on the miracles. They want to focus, when is Jesus coming? They want to focus excessively on Israel and various other things. और जो एकदम विद्रोह करने वाले लोग हैं वो इन बातों के वचनों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो कोई और बलती बातों पर ध्यान देते हैं कि चमत्कार यहाँ पर हो रहा है, यीशु कब आएगा, इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं। Amen. Amen. But Paul wants us as the church to have a vision and focus on obedience and righteousness. और पौलुस ये चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी वाले लोग बने, आज्ञा पालन वाले लोग बने, और हमारा ध्यान जो है दया और न्याय पर रहे। Amen. Amen. Now coming back to the elder, it says, therefore he must be blameless. और इसीलिए इसकी शुरुआत होती है वचन की कि वो निर्दोष रहे। Blameless doesn't mean sinless. और निर्दोष का मतलब ये नहीं है कि वो बिना पाप का रहे, But it means on the things I've mentioned, no one should be able to blame him easily. और सिर्फ इन्हीं बातों पर नहीं, पर यहाँ पर जो बात आपको बताई गई है, इन बातों को लेके कोई भी उनके ऊपर उंगली ना उठाए और उनको इस बात का दोषी ना बनाए। Amen. Okay. Now, I'd like us to look at it this way. और मैं चाहता हूं कि वचन को गौर से देखें। For us, हमारे लिए do you think God wants
people to be able to blame us all as Christians? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह होने के नाते एक दूसरे के पर दोष मढ़ते रहें? Do you think God wants your neighbors to say what kind of a Christian he is and she is? I hear them arguing whole day long. और हम ऐसे क्या ऐसे मसीह बने जहां पर पड़ोसी आकर के आपके ऊपर उंगली उठा के आप पर दोष लगाएं? ये ये कैसा think- मसीह है करके? Do you think God wants this of all of us? क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, ऐसे ऐसे लोग पीछे चले उसके? That our neighbors can say, what Christianity? और आपके पड़ोसी आकर आपको बोले क्या मसीह है ये? Is that what God wants of you? क्या ये परमेश्वर चाहता है आपके साथ में? Huh? Your neighbors can accuse you. और आपके पड़ोसी आपके बाजू वाले आकर आपको नहीं। पर दोष बढ़े? No. So being blameless is really not just for an elder. और निर्दोष रहना, निष्कलंक रहना ये सिर्फ अगुवे के लिए नहीं है। And we must look at the standard God's raising in his church. और हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके का जो है एक औदा खड़ा कर रहे हैं। Amen. However, when we come back to this passage, और जैसे भी हम इस वचन की ओर आते हैं, if there's any serious accusation raised on an elder, अगर उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं on any of the above things we talked about, और इन सारी बातों को लेकर जिनके ऊपर हमने बात करा, it affects people's trust in church and people's trust in leadership. ये लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाता है और उसके ऊपर एक तरह का दुष्प्रभाव डालता है कलीसिया के ऊपर विश्वास और कलीसिया के अगुवों के ऊपर विश्वास के ऊपर वो ठेस पहुंचाता है। And sometimes accusations can come against elders. और हो सकता है कि अगुवे के खिलाफ में ऐसी बातें और दोष लगाए जाएं For any of the above reasons. ये सारी बातों को लेकर। All right? Sometimes those accusations can be proved, और कुछ बार ये जो दोष लगाए जाते हैं इनको साबित भी किया जा सकता है and sometimes they may not be proved, but they're still accusations. और हो सकता है कि ये सच भी ना हो पर ये सिर्फ दोष है। Now, if there's an accusation against an elder, अगर किसी अगुवे के ऊपर दोष लगाया जा रहा है it will still damage the credibility of the church and the credibility of leadership. और ये जो है कलीसिया के ऊपर जो रखा जाने वाला जो विश्वास है उसको उसके ऊपर एक गलत प्रभाव लेकर आता है। And we must understand the heart of God in ensuring that there is righteousness in the church. और हम जो है परमेश्वर का जो दिल है इसको पकड़ कर चले कि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के अंदर धार्मिकता रहे। We must understand the heart of God for our character. और परमेश्वर का हृदय हमारे चरित्र के लिए क्या है वो देखें। All of us, हम सभी के लिए but more so for elders. और सबसे बढ़कर अगुवों के लिए। All right? I've shared with leaders in UP, even here. और मैंने जो ये जो है यूपी में जो अगुवे हैं उनके साथ भी बांटा और यहाँ पर भी बांटा है। Some of our Hindi leaders as well. हमारे कुछ हिंदी बोलने वाले अगुवे उनके साथ में भी। What's your reputation when it comes to drinking? और आपकी क्या यहाँ पर मान सम्मान, आपकी क्या इज्जत है जब बात आती है पीने के बारे में? Do people think you're a person who drinks all the time? क्या लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप हर समय पीते रहते, शराब पीते रहते हैं? We got to be on guard. We got to be on guard. और हमें जो है इस बात को लेकर एकदम सतर्क होना और पहरे पे रहना है। All right? Because God's interested in our character. क्योंकि परमेश्वर दिलचस्पी रखता है हमारे चरित्र में। Because He wants us to uphold His name and the gospel that we say we believe. क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके सुसमाचार को जिसने हमें बचाया वो हमारे अंदर थाम कर लेकर जाना चाहता है। Amen. God's standards for our character remain the same. परमेश्वर ने कुछ औदों को ऐसा रखा है God's standards for elders remain the same. और परमेश्वर ने जो रखा है प्राचीनों के लिए जो स्तर रखा है वो हमारे लिए भी रखा है। And it must be honored beyond our personal preference or emotion. और हमारे खुद के जो व्यक्तिगत भाव है उसके ऊपर हमें परमेश्वर की धार्मिकता का आदर करना है। So, if an elder is accused and it is not proven, अगर एक प्राचीन के ऊपर आरोप लगाया जाता है और उसको सच साबित नहीं किया जाता,
we must handle it soberly, हमें जो है उसे खास तौर पे अच्छे से ध्यान रहना है and yet according to the Bible. और वचन के साथ। So if an accusation is serious, अगर कोई आरोप गंभीर है, an elder would have to step down उस अगुवे को अपनी जो जो प्राचीन है उसे वहां से It will be a निकाल दिया जाता है। biblical act of protecting the flock and honoring the standard of God. और इसका मतलब ये है कि वो वहां से अपनी जगह वो छोड़ देते हैं और परमेश्वर की जो भेड़ है उनकी रक्षा करते हैं। So the first point we're seeing is we all as a church have to have this fear of God, have to have a standard to walk with a good character because God wants all of us to. और हम एक परमेश्वर की कलीसिया होने के नाते जाने कि परमेश्वर ने एक स्तर रखा है कि And we जिसके see- मुताबिक हमें चलना है। And we see an elder must be blameless. और हमने जिस तरीके से देखा कि एक प्राचीन जो है वो निष्कलंक रहना चाहिए, निर्दोष रहना चाहिए। Amen. Let's take the second slide. Let's look at the next scripture. और आइए आगे वाले वचन को देखते हैं। In that context, as a church, we need to we must be a church that has leadership accountability. और हम जहां पर देखते हैं कि कलीसिया होने के नाते जो प्राचीनों के साथ भी हम लेखादारी रखें। 1 Timothy 5 verse 19 and 20, 19 to 21. Do not receive an accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest may also fear. I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that you observe these things without prejudice, doing nothing with partiality. और पहला तीमुथियुस की किताब उसका 5वां अध्याय 19वें वचन से लेकर 21वां वचन, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के साथ उसे न सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और भी लोग भी डरे। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों की उपस्थित जानकर मैं तुझसे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर कि कोई कमी पक्षपात ना कर। All right, so we've established that character is for all of us. और जिस तरीके से हमने देखा कि चरित्र हम सभी के लिए एक जैसा है। All right, that we're talking about obedience and righteousness. हमने आज्ञा पालन के बारे में और धार्मिकता के बारे में बात करी। All right, and for us as leaders too. और हम सभी जो अगुए हैं उन सभी के लिए भी। But so that we get the full impact of what God's looking for in our obedience or in our character, ताकि इन सारी बातों का प्रभाव हो तो कि जो परमेश्वर हम में देख रहा है उसके आज्ञा पालन और उसके चरित्र को। we must now look closely at the specific clauses given for elders. और हम देखते हैं खास तौर पर उन बातों को जो प्राचीनों के लिए दी गई है। And this verse tells us that sometimes there may be an accusation against an elder. और यहाँ पर जिस तरीके से वचनों में लिख के हमको दिया गया है, हो सकता है किसी प्राचीन के खिलाफ में कुछ दोष लगाए जाए हो। Then the question is, how do we as a church handle this? और ये सवाल ये कि हम कलीसिया के रूप में इसको कैसे संभालें। And Paul says, I give you this charge without prejudice and without partiality. और पौलुस ये कहता है बिना किसी कमी पक्षपात के इसको करने के लिए और सारी बातों को मानने के लिए। So let's look at this term. I hope you are understanding why God's putting this in scripture. और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर इन वचनों में ये बातें हमको क्यों बता रहे हैं। Right? Because he really wants to maintain what his church, a glorious church, looks like. क्योंकि परमेश्वर इस बात को बताना चाहते हैं कि एक शानदार महिमान वो एक कलीसिया कैसे दिखती है। So he's touching this topic about an accusation against an elder. और इसीलिए ये जो है एक प्राचीन के खिलाफ
एक दोष को लगाए जाने के बारे में बता रहे So, हैं। firstly, in this passage, Paul's saying, don't entertain frivolous accusations because such frivolous accusations come. और पौलुस बता रहे हैं कि किसी की कई सुनी बातों के ऊपर, जो दोष लगने वाली बातों के ऊपर, इस पर ऐसे पे ध्यान न दें। And elders are not to be torn down by any rumor that comes about. और ऐसी जो अफवाहें आती है, इन बातों के ऊपर आप ध्यान न दें जो प्राचीन के खिलाफ में आती हैं। Also, we can pick up Paul's heart that people shouldn't just be talking about anything between themselves regarding elders. और ये बता रहे कि कलीसिया में जो लोग हैं वो इस बात को लेकर कुछ बोले नहीं, जो बात में जो प्राचीन के ऊपर जो दोष लगाने के बारे में है। So elders need to be protected from false accusation. और प्राचीनों की सुरक्षा करनी चाहिए इन झूठे दोषों से। Number two, but if an accusation is serious, दूसरी बात, अगर कोई दोष गंभीर है, it must be looked at. उसके ऊपर नजर करनी चाहिए। If the situation becomes of public concern or can affect the church. अगर ये जो है लोकहित के बारे में आता है तो इसके सामना और इससे निपटना बहुत जरूरी है। All right, so there we have a responsibility. So number three, it और यहाँ पर says, हमारी जिम्मेदारी आती है। तीसरी बात यहाँ पर, we must be clear and transparent. और हमें जो है एकदम साफ तौर पे एकदम स्पष्ट होना है। Okay, he says that means such an elder who has sinned must be rebuked in the presence of all. और ये बताता है अगर किसी प्राचीन ने ये किया है तो उसे सबके सामने जो है फटकार लगानी चाहिए। To ensure that there's no wrongdoing covered up. तो इससे ये होगा कि कोई भी अगर गलत कर रहा है तो वो छुपाया नहीं जा रहा है। We maintain the integrity and trust in the church. और हम जो है कलीसिया के अंदर वो जो सही से न्याय किया जा रहा है और सही किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं किया जा रहा। And the reputation of spiritual leadership. और इसी तरीके से जो सम्मान किया जाता है एक आत्मिक अगुवाई का, उसका वो ओहदा बना रहता है। If an accusation comes, there are two possibilities. कि किसी भी तरीके की जब आप दोष को सुनते हैं Number तो one, उसके अंदर जो है दो मुमकिनताएं होती हैं। number one, सबसे पहला, there is proven accusation or proven sin. सबसे पहला कि साबित किया जाने वाला दोष या साबित किया जाने वाला पाप। So we can see in that scripture what is proven is if there are at least two witnesses. और कब इसको साबित किया जा सकता है? जब प्राचीन के ऊपर दोष लगाने वाले ऐसे दो गवाह पेश किए जाएं। So in that case, we must take disciplinary action. तो उसका मतलब ये है कि उनके ऊपर अनुशासन करने वाला कार्य उनके ऊपर किया जाए, अनुशासन लाया जाए। Because the sin is proven or it's confessed. क्योंकि पाप जो है उसको साबित किया गया है या फिर उसको कबूल किया गया है। But the second situation is if the sin is not proven. और दूसरा ये बात आती है कि जहां पर पाप को साबित नहीं किया गया हो। If there is only one accuser, अगर but with a strong allegation. अगर एक दोष लगाने वाला है पर जो दोष उसने लगा है वो बड़ा गंभीर है। In such a situation, we cannot conclude that the elder has sinned. और सिर्फ एक के जो बल पे हम ये तय नहीं कर सकते कि उसने जो है सही में ये चीज को करा है या नहीं। But because of the nature of the allegation, पर क्योंकि जिस तरीके का दोष उसके ऊपर लगाया गया है, because of its seriousness, क्योंकि उसकी जो गंभीरता है, we have a responsibility to still examine it. और हमारे पास ये मौका है कि हम उसकी जांच पड़ताल करें, To hear even one witness. कि हम एक और गवाह को सुने। Because like we said a year and a half ago, क्योंकि जिस तरीके से 1.5 साल पहले उन्होंने the कहा, church must be a safe place where anyone can come and know that they will be heard. क्योंकि कलीसिया एक ऐसी जगह बने, ऐसी सुरक्षित जगह बने जहां कोई भी आए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि वो वहां पर अपनी बात को रख सके। All right, so when there's one witness, अगर एक गवाह होता है but the accusation is serious, और जो आरोप है वो बड़ा है और गंभीर है, we cannot ignore the accusation. उस
दोष को और उस आरोप को हम नजरअंदाज नहीं But कर we सकते have to be wise in how we handle it. और उसके अंदर हमें बड़े बुद्धि के साथ उसको निपटना होगा। And this scripture gives us the wisdom. और ये वचन जो है हमें वो बुद्धि देता है। Scripture we saw earlier. हमने जो इसके पहले के वचन को देखा, And it says, even though it cannot be proved, it says an elder must be blameless. और जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि आपने उसे फटकार लगानी, और उसके पहले बताया एक प्राचीन को निष्कलंक और निर्दोष रहना है। He is responsible that no one should be able to blame him in a major way. और वो कुछ जिम्मेदार है ताकि कोई भी उसे उसके ऊपर कोई बड़ा आरोप ना थोपे। On the things we spoke about earlier. उन बातों को लेकर जिन बातों को हमने इसके पहले वाले वचन में पढ़ा, Faithful to his wife, अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्य overbearing, और हमेशा जो है quick सत्य बोलने tempered, वाला, गुस्सा न करने वाला drunkenness, और पियक्कड़ न होना violence, और मारपीट करने वाला pursuing dishonest gain, etc. और जो है ठगी से पैसे जमा करने वाला। And if such a situation arises, और अगर ऐसी परिस्थिति आती है the elder has to bear this responsibility. तो प्राचीन जो है इसका हकदार बनता है। Why was he not responsible enough that he got into such a situation? कि क्यों वो जिम्मेदार नहीं था जिसकी वजह से उसके ऊपर ये दोष लगाए गए, And put into question the office of the elder. कि और उसके ऊपर ये सवाल खड़े हो गए, Put into question his own character. Why did he get into this situation? और ऐसे सवाल उसके चरित्र के ऊपर उठे, ऐसा क्यों हुआ। Here, Paul clearly writes he must be blameless. और पौलुस यहाँ पर साफ तौर पे लिख रहे हैं कि एक प्राचीन को निर्दोष होना है। He is not innocent of allowing the blame to come to him. वो निर्दोष रहे ताकि ये जो आरोप उसके ऊपर लग रहे वो ना लग पाए। He must fear God and accept his responsibility seriously. और वो जो है परमेश्वर के सामने अपने आप की जो जिम्मेदारी को एकदम गंभीरता से ले, Of letting his character come to such a place कि इस जगह पर उसके चरित्र के ऊपर सवाल उठाए गए, of allowing the church to face this. और उसने इजाजत दी ताकि कलीसिया इसका सामना करें। An elder cannot act as a victim. और एक जो प्राचीन है वो जो है एक शिकार के जैसी मानसिकता नहीं रख सकता As though something wrong was done to him. कि उसके साथ गलत किया गया। As a spiritual leader, एक आत्मिक अगुवा होने के नाते bears the weight of higher accountability, उसके ऊपर, उसके कंधों के ऊपर वो भार है जिसके ऊपर वो बड़ी लेखाधारी रखता हो, and of being blameless. ताकि वो निर्दोष रह सके। And so in a situation like this, it has to be carefully examined. और ऐसी हालातों में और ऐसी परिस्थितियों में गंभीर तौर पे उसकी जांच की जाए। And if it's found that he was not blameless, अगर ये पता लगे कि वो निर्दोष है, then he must step down from the office of eldership तो उसे प्राचीन की जगह से नीचे उतरना होगा to protect the integrity of the leadership in the church, ताकि कलीसिया की जो इज्जत है, कलीसिया के जो मान सम्मान, कलीसिया का जो नाम है, and to उसको रक्षा करे, protect the flock of God. और परमेश्वर की जो भेड़ है उसकी रक्षा करें। That's us, the church. और कलीसिया के लिए है। And I pray we will understand और ये मेरी प्रार्थना है कि तुम इस बात को समझो God's heart even this year for our vision. कि ये साल जो परमेश्वर का दिल है हमारे इस दर्शन के लिए, Be a people of obedience. कि हम ऐसे लोग बने Be a people of character. कि आज्ञा पालन करते हो और चरित्र में मजबूत बने। Right? So, the elder in such a case will be declared as he's not blameless. कि ऐसे मामलों में एक प्राचीन को निर्दोष घोषित किया जाता है। So, we're not saying an elder in such a situation is guilty. और एक प्राचीन इस क्षेत्र में जो है उसके ऊपर जो दोष लगाए गए और वो आरोपी है, We're not saying he is innocent.
हम ये नहीं कह रहे कि वो निर्दोष है, but we recognize according to the scripture, he is not blameless. और इस वचन के मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। All right. And so therefore, in such a situation, an elder needs to step down from leadership. और ऐसे मामलों में प्राचीन को अपनी अगुवाई से हट जाना चाहिए। Right? And even if he knows or believes he's innocent, even if he knows or believes he is innocent, अगर वो खुद जानता भी हो कि वो निर्दोष है, he will still recognize that he needs to step down for not being blameless. उसे अपनी कुर्सी को, अपने जो परमेश्वर में जो पद है उसका, प्राचीन का, उससे उसको नीचे उतरना Right? पड़ता है। So an elder will step down. Now, if he has to step down, then what? Let's look at the third slide. और प्राचीन अपना पद छोड़ने के बाद आगे क्या? It says in Micah 6:8, he has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God? और मीका की किताब 6 अध्याय 8वां वचन, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। God wants us to be just and fair. परमेश्वर जो है न्यायी है, Right? And that's, you see this in our vision statement, act with justice and with mercy. और हम देखते हैं अपने जो दर्शन के साल के कि हम जो है न्याय के साथ और दया के साथ कार्य करेंगे। We have to grow as a people that have righteousness in our homes and mercy. और हम ऐसे लोग होने चाहिए जहां पर दया और न्याय जो है हमारे परिवारों में हो। God calls us to act justly, और परमेश्वर जो है हमें धर्मी कहता है, especially on behalf of the vulnerable, खास तौर पे उन लोगों के बारे में जो कमजोर हैं, so that anyone can bring in a complaint against a leader when he or she feels she's witnessed something. और ये जो है एक तरीके से जब कोई एक शिकायत लेकर आता है प्राचीन के खिलाफ में, जब उसे लगता है कि ये चीजें हुई, Or if they feel they've been sinned against by the elder. और अगर उनको लगता है कि उनके खिलाफ में जो है प्राचीन ने पाप किया, Such a person has to have this space where they are free to talk and bring the accusation. और ऐसे लोगों को छूट दी जाती है ताकि वो आए और अपनी बात को रखें। Just because he is a single witness and relatively smaller or an unknown person, we must still be fair to hear that person. और हो सकता है वो एक लौता ऐसा व्यक्ति हो जो दोष लगाने आया हो और एक लौता गवाह हो सकता है, हमें फिर भी उसे हल्के में नहीं लेना है, बल्कि हमें उसे वो माहौल देना है जहां पर आके वो अपनी बात को रखे और हम जो बात उसने रखी है उसको सुने, Without letting him be ignored, silenced, or ashamed. और बिना उसको नजरअंदाज किए हुए, ना उसको चुप बिठाए, ना उसे चुप्पी करके हुए यहाँ से जाने को कहें। Right? We must grieve with the person who feels pain and anguish, हमें उस व्यक्ति के साथ शोक मनाना है जो दर्द और पीड़ा से गुजर रहा हो, so that the church is a safe place. ताकि कलीसिया एक सुरक्षित जगह बन सके। Church is not a place where those in authority are easily defended and the wounded are silenced. और कलीसिया ऐसी जगह नहीं है जहां पर जो अधिकार में ऊपर है उनको बचाया जा सके और जो चोटिल है उनको आकर के चुप बिठा करके शांत किया जाए। Right? In such a situation, we are not judging an elder, but we are hearing anyone who comes to us. We are not the judge. God alone is the judge. और जब हम जो है किसी का न्याय नहीं कर रहे यहाँ पर, बल्कि न्याय तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर करते हैं, और हम सिर्फ अगुवे के ऊपर न्याय नहीं लेकर आते, हम उस व्यक्ति की भी बात को सुनते हैं। All right, so what do we do हम करेंगे क्या now with such a situation? And this is my final slide. और ये आखिरी स्लाइड है। Now that righteousness is met, an elder needs to step down. What do we do?
और धार्मिकता को पाया जाता है और एक अगुवे को एक एक प्राचीन को अपने पद से जाना पड़ता है, उतरना पड़ता है। Galatians 6:1 says, brothers, sisters, if someone is committed, और गल छठा अध्याय पहला वचन, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ पर इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। all right, so let's catch God's heart here. और आइए हम परमेश्वर के दिल को थामे। God will not compromise righteousness or justice. He doesn't compromise that. परमेश्वर न्याय और धार्मिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। God as a judge परमेश्वर जो कि न्यायाधीश है, has to judge anything that's not righteous. उन सब का न्याय करेंगे जो अधर्म है। He cannot let go of righteousness because he's a just judge. और धार्मिकता को वो जाने नहीं देंगे क्योंकि वो इंसाफ करने वाले परमेश्वर हैं। But as a father decide, पर वो है पिता भी है इस ओर, he wants to love us. और वो हमसे प्यार भी करते हैं। He wants to bring his mercy. वो अपनी दया को लेकर आना चाहते हैं, But he cannot. पर वो नहीं कर सकते Because first, righteousness must be dealt with. क्योंकि धार्मिकता है जिसका हिसाब चुकाना पड़ता है। He has to act justly first. He's a just judge. और परमेश्वर जो है सबसे पहले इंसाफ करेंगे, अपना न्याय जो देंगे इंसाफ के साथ देंगे। And to satisfy his justice, to satisfy his righteousness, उसकी धार्मिकता को पूरा करने के लिए, उसको तृप्त करने के लिए he sent Jesus to die for us. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए मरने के लिए। He would not judge us for, he would not budge from righteousness. और वो जो है अपनी धार्मिकता के साथ वो समझौता उसको चूक नहीं कर सकते। And we must understand the Son of God had to come to die on our behalf because of our righteousness. और इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर के एक लौते बेटे को आके मरना पड़ा हमारी धार्मिकता के लिए। And we must understand something. और हमें कुछ जानना जरूरी है, समझना What जरूरी है। did the Father feel when he was putting Jesus to die? उस पिता के दिल पे क्या बीती होगी जिसने अपने एक लौते बेटे को वहां पर मरने के लिए भेजा। He who sacrificed his only son. जिसने अपने एक लौते बेटे को कुर्बानी उसके कर दी। Why? क्यों? For righteousness. उस धार्मिकता के लिए। He could not let righteousness go. वो उस धार्मिकता को चूक नहीं करा सकता। His heart for his son, he had to put those emotions aside and say, no, for them, I will satisfy righteousness first. और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने दिल के लिए नहीं, पर हमारे लिए, उन लोगों के लिए, उनकी धार्मिकता के लिए उसको भेजा। And when righteousness was satisfied, और जो उसकी जो धार्मिकता जिसको तृप्त किया गया, Jesus died यीशु मरा for you. आपके लिए, मेरे लिए। You couldn't do it. और आप उसके अंदर थे। He did it. उसने करा। Because the Father loved you and sent him क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसको भेजा to satisfy righteousness. ताकि वो धार्मिकता को तृप्त करे। When his righteousness was satisfied first, और जब उसकी धार्मिकता तृप्त हुई, as a father, पिता के नाते, he could now bring his mercy to us. और फिर अब वो अपनी दया को हमें दे सकता है। Amen. We must understand हमें समझना है our vision. हमारे दर्शन को। We cannot just be people who want to give mercy. That's a good thing. That's from God to give mercy. But we cannot just give it. और सिर्फ जो है हम दया पे जब बैठे रहते हैं, हाँ परमेश्वर दया देता है, पर दया के ऊपर ही हमें बैठा नहीं है, वो परमेश्वर देता है। First, satisfy righteousness. सबसे पहला
धार्मिकता है उसको परमेश्वर तृप्त करता है। And I want us to understand the heart of God. और सबसे पहले परमेश्वर के दिल को समझिए। Be a righteous people, हम धर्मी लोग and then be a merciful people. और फिर दया दिखाने वाले लोग। And so Galatians says this, और इसलिए गलातियों की किताब ये कहता है, brothers, भाइयों sisters, बहनों, we've got the righteousness. हमें धार्मिकता मिली है। If someone's caught in a sin, अगर कोई पाप में पकड़ा जाए, listen, we've got a responsibility देखो आपके पास एक जिम्मेदारी है to be very merciful. कि आप उस पर दया Amen. दिखाओ, Very merciful, दया दिखाओ very loving, और उस पे नरमी बरतो very gentle. और उसके ऊपर आप जो है एकदम नम्रता के साथ रहो। And Paul says, watch yourselves on this. और पौलुस भी कहता है खुद की निगरानी रखो, चौकसी रखो। So when an elder steps down, righteousness is established. और जब प्राचीन अपने पद को छोड़ता है, वहां से उतरता है, But then we've got this responsibility to restore a person very lovingly, very gently, very mercifully. और फिर हमारे पास वो जिम्मेदारी आती है कि हम उस व्यक्ति को प्यार के साथ, दया के साथ पुनर्स्थापना करें उसकी। He's our brother in Christ. ये है हमारे मसीह में, He's not condemned. दोष नहीं। And we've got to restore him. और Careful. हमें जो है गौर से उसे पुनर्स्थापित करना है। We do not condemn him. हम उन पर दोष नहीं लगाते, We walk with him in love, हम उनके साथ प्यार से चलते हैं, in prayer, प्रार्थना के साथ, in brotherhood, भाईचारा के साथ, and we believe God for what's ahead. और परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं आगे जो है। Amen. आमीन।